थ्रस्ट जो प्लेन को आगे लेके जाता है, वेट जो प्लेन को नीचे लेके जाता है, ड्रैग जो प्लेन को आगे जाने से रोकता है, और लिफ्ट जो प्लेन को ऊपर लेके जाती है। सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज मैं आया हूँ हरियाणा के दमदमा लेक में, और यहाँ पे लगा हुआ है एरो स्पोर्ट कार्निवल। हरियाणा एरो स्पोर्ट कार्निवल को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है हरियाणा टूरिज्म की तरफ से। इस कार्निवल में मेन अट्रैक्शन है हॉट एयर बैलून्स, पैरा मोटरिंग, एरो मॉडलिंग, ड्रोन्स, फूड फेस्ट, एडवेंचर एक्सपो। My name is Derek. I am an aero modeler. Okay. So this is aero modeling. So these things are like they can learn about aviation through these gliders. Like these are chuck gliders. So they basically learn how to fly these plane, parts of plane, who made this plane, like physics, everything. Okay, that's Yes. good. Yeah. So they can fly, or it is an only model? All are flyable models. All are flyable models. Yes, so we yes. can fly if we throw, so it can fly. It can fly. Yes, exactly. Okay, that's great. तो गाइस यहाँ पे जो आप मॉडल्स देख रहे हैं सर, आपने खुद बनाए हैं? Yes, sir. तो ये जो मॉडल्स हैं ना, ये सारे के सारे सर ने खुद बनाए हैं, और ये फ्लाई भी कर सकते हैं। तो these are all laser cuttings? Yes, these are laser cut parts. So Okay. basically we teach in school. Yes, we can teach it as a home. They can just call it as air model crafts. For education, like Aero Sapiens, for education. Okay. Yes, for if you want to build it at home, you can call us as Air Model Crafts. Air Model Crafts is the airmodelcraft.com. Yes, supported by Aero Sapiens. ओके, दैट्स ग्रेट। तो ये किट है आपकी पूरी बनी हुई इसके अंदर? Yes, sir. ओके, तो कितना टाइम लग जाता है इसको बनाने में? So these are, I made it very easy to build, like 5 minutes, 30 minutes, like 5-minute build. Okay, So that's this great. is a 10 minutes build, the 20 minutes build, or 30 minutes build. And this is again 10 to 15 minutes build. Yes. And this, So what is the material? This is the balsa material, lightest wood material. Basically we use in balsa. Aero Balsa is a type of wood. wood, imported wood. Imported wood. Okay. So what is the price of these crafts? Yeah, basically we'll start from this. Okay. So this is 200 rupees. 200. Yes. Okay. And this is 250 rupees. 250. Yes. This is 350. 350. And this is 450, and this is also 400. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर इन्फॉर्मेशन। No problem. तो अभी ये सर हमारे को एक छोटा सा डेमो दिखा रहे हैं। तो ये रबड़ बैंड के ऊपर बेस है सारा? हाँ, ये रबर बैंड। ओके। रबर एनर्जी के बारे में बच्चे सीखते हैं। तो अभी जो ड्रोन था ना, बहुत अच्छे से फ्लाई हुआ है, पर दिक्कत क्या है कि बहुत ज़्यादा हवा की वजह से ना वो सीधा क्रैश हो गया उस तरफ। It's about the shape, that what is the round shape and what is the cubical shape, or all the technology or the effect on the mind of the shapes. These are our heritage work on the shape technology, and how it works, how they have made, and what are the significant is completely documented here. You can scan that QR code and you can know that how yantras works. These are all handcrafted, handmade by the traditional artisans. ओके। So we are in a way promoting the heritage and cultural roots of India. So whatever designs, these are some meanings. Okay. Like this, if you can see right here, this is the Chethi script. ओके, दैट्स ग्रेट। 16th century. Yes.
You just have a look. There you can scan. Each and every product is painted by hand, hand rub product. So this design is Eternity, Buddha's Eternity knot, one of the 8 symbols of Buddha. Okay. So you have. These are all handmade. These are all handmade. Everything is handmade. This is a stitchless wallet. See, there's no stitch. There's no stitch involved with it. It is very sleek. Okay. So what is the cost of this? This is 800. 800. Yes. It's a pure leather. That's It's why a it pure is. one-piece leather. Okay. There's no joint in it. It's one-piece leather. Okay. This is a convertible pouch. You can keep it like a pen holder on your desk. You can ask. And then you can go and zip it off. This is a pyramid shape, the exact shape of the pyramid, which is of the pyramid of Giza. So this you can use it as a tea light holder. No stitch. Yes, or a lobandan. Or Okay. you can keep your camphor, and it's a natural deodorizer for the home. Oh, that's good. And what are the price of these and this? This one is for $1,000, Okay. and this is for 500. फिक्स द थिंग्स इन इट, और इसका पेलोड जो है वो 5 किलो का है। 5 किलो तक ये सामान उठा इजीली कैरी कर सकते हैं ये। और 5 किलो के साथ ये कोई कम से कम नहीं तो मतलब 15 मिनट उठ सकता है। 15 मिनट की ड्राई है। तो इसकी कॉस्ट कितनी बढ़ती है? सर इसकी कॉस्ट पड़ेगी कोई 1.25 लाख रुपए से। इसके नीचे हम कैमरा भी लगा सकते हैं। ओके। और इसके अंदर हम अगर हमें कोई जैसे मेडिसिन वगैरह हो गई या हमें फील्ड पे स्प्रेइंग वगैरह करनी है तो उसकी काम भी ये आ सकती है। तो इनका फ्लाई टाइम कितना होता है? Depend on battery, around 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes. So it is operated by controller, RC controller. So this is RC controller जो इन planes को कंट्रोल करता है। फ्लाइट टाइम सर बता रहे हैं 10 to 15 मिनट्स। सर ये बच्चों के लिए है बेसिकली, जो कि मतलब थोड़ा सा शौक रखते हैं एयरप्लेन के बारे में और उसको बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं एयरप्लेन अपने हाथ से। तो इसके अंदर ये है कि हमने इसके अंदर ये ब्लॉक्स वगैरह दिए हुए हैं। वी हैव टू जस्ट फिक्स द पार्ट्स और इसको हम फेविक्विक से ग्लू अप कर देते हैं, बन जाता है ऐसे। ये वुड कौन सी है सर? सर ये इम्पोर्टेड प्लाईवुड है सर। इम्पोर्टेड प्लाईवुड है तो लेजर कटिंग। इट इज इंडियन, मतलब इंडिया में बना हुआ है कि बाहर से इम्पोर्ट है? सर इंडिया। तो ये जो पीस है ये बन के ऐसा रेडी हो जाएगा? ये MiG-21 है, ये वाला पीस रखा हुआ है Su-30 का रखा हुआ है सर। ओके सुखोई 30। हाँ जी सुखोई 30 का। व्हाट्स योर गुड नेम सर? सर आई एम दीपक शर्मा। दीपक शर्मा फ्रॉम हौजखास। हौजखास एलिवियन हौजखास। ओके थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छी डिटेल दी। ये बालसा वुड होती है, ये बालसा वुड है। इससे हम ये पूरा का पूरा अपना जो प्लेन है ये हम बनाते हैं। ये वर्ल्ड की सबसे हल्की वुड है। ये इसके अंदर हम ऐसे करके ये इसके तो इंडिया के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाती है कि इंपोर्ट करनी पड़ती है? इंपोर्ट करनी पड़ती है, वी हैव टू इम्पोर्ट इट। और ये हम इसके अंदर ये है, इसको हम सैंडिंग करते हैं, इसको हम प्रॉपर एरोफॉइल शेप देते हैं इसके अंदर। ओके। और एरोफॉइल शेप देने के बाद फिर हम इसको फ्लाई करते हैं। तो एयरफॉइल शेप देने से क्या होता है कि इसके ऊपर बर्नौलीज प्रिंसिपल लगता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल से क्या होता है कि एरोप्लेन का जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है और नीचे जो है हाई प्रेशर हो जाता है। तो इससे क्या इसको प्लेन को लिफ्ट मिलनी शुरू हो जाती है। ओके। और ये फिर आराम से ग्लाइड करता है। तो ये मतलब हाथ से हम थ्रो करेंगे तो इजीली फ्लाई होगा? हाँ जी, हम इसको हाथ से भी थ्रो कर सकते हैं, इसको हम कैटापुल्ट से भी कर सकते हैं। ओके दैट्स ग्रेट। तो कोई डेमो दिखा सकते हैं? तो सर अभी एक मॉडल को हमारे को उड़ा के दिखा रहे हैं। नंबर दो आप उनका एक बार। काफ़ी मतलब उसके आगे वेट लगाना पड़ता है? हाँ जी सर, इसके अंदर ना एक्चुअली क्या होता है, जो अपना एरोप्लेन है इसमें 4 फोर्सेस लगती हैं। ओके। ठीक है, थ्रस्ट जो प्लेन को आगे लेके जाता है, वेट जो प्लेन को नीचे लेके जाता है, ड्रैग जो प्लेन को आगे जाने से रोकता है, और लिफ्ट जो प्लेन को ऊपर लेके जाती है। ओके। ठीक है सर, तो वो चारों की चारों जो है वो एक पॉइंट मिलती है जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करने के लिए जैसे हम बचपन में खेलते थे ना कि पेन को हम बैलेंस करते थे, तो वैसे हमें इसे भी बैलेंस करना पड़ता है। ओके, तभी आपने इसके फ्रंट में क्ले लगा रखी है? क्ले लगाई है। ओके। तो जिससे ये बैलेंस हो जाता है और फिर ये अच्छे से फ्लाई करता है।
और स्पेशली हमारा होली वीक स्टार्ट हो रहा है। तो इसके टाइमिंग्स क्या होते हैं? मान लीजिए 1150 दिए तो कितने बजे से कितने बजे तक? सर मॉर्निंग 9:30 से शाम को 5:30 बजे तक इसकी टाइमिंग है और चिल्ड्रंस के लिए 650 रहता है और स्कूल बुकिंग होता है उसमें 550 पर स्टूडेंट लगता है। इसका इनॉग्रेशन करने आए हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल। उसके साथ ही वो यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन भी रखने आए हैं जिसका नाम है कैट यानी सेंटर फॉर एडवेंचर टूरिज्म, जिसकी वजह से आने वाले समय में दमदमा लेक एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब बन जाएगा। श्री मनोहर लाल जी के पावन पद बढ़ते हुए और ये पावन कदम, ये पावन पद हरियाणा टूरिज्म के एडवेंचर टूरिज्म को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हुए एक ये नई पहल, एक ये नई शुरुआत जिसके लिए हरियाणा टूरिज्म अत्यंत बधाई के पात्र है। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाते से यहाँ जो गतिविधियों की शुरुआत की गई है इसमें न केवल हरियाणा के लोग बल्कि मैं समझता हूँ कि दिल्ली बहुत दूर नहीं है, गुजरात बहुत दूर नहीं है और टूरिज्म के लोग तो इस छोटी दूरी को 10-20 किलोमीटर को कुछ नहीं मानते, सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर भी लोग जाते हैं। तो अगर ये अच्छा टूरिज्म सेंटर उपयोग करते हैं तो देश भर से, विदेशों से, दिल्ली से, गुजरात से, सब जगह से बड़ी मात्रा में यहाँ टूरिस्ट आएंगे। तो इस इलाके की जो आर्थिक स्थिति है, यहाँ का जो विकास है वो भी अच्छा होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तो इस अवसर पर ये जो यहाँ पर एरो स्पोर्ट्स के जो कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं, खास करके एडवेंचर के जो कार्यक्रम है, इस एडवेंचर में चाहे वो नौकायन हो, वाटर स्पोर्ट्स हो, एयर स्पोर्ट्स हो, जो एयर स्पोर्ट्स भी अपने आप में एक जिसको कहना कि साहस का, एक जुनून का ये काम होता है। तो जुनून और साहस के लिए लोग दूर दूर तक आते हैं। यहाँ एयर बैलूनिंग इसका भी एक कार्यक्रम शुरू होने वाला है, आपके सामने कार्यक्रम होगा, इसके बाद दिखाया जाएगा। तो एक यहाँ पे अभी डेमो दिखाने लगे हैं एक एयरक्राफ्ट का और वो उसको आरसी कंट्रोलर से उसको ऑपरेट करेंगे। अमेजिंग।
गया। Ladies and gentlemen, we have a skydiving instructor certified from the US, Mr. Mayam Nagpal, who has done 1500 sky jumps, have got Asian and nation records to his name. He's a base jumper also. Here he will be performing a skydive, as you've already seen, he's already jumped from the sky. Ladies and gentlemen, he's just absolutely amazing with what he does. The paramotor would be going approximately 2500 feet above the ground level, and finally, as we can see, that he is right there. Well, जैसे कि हम देख रहे हैं कि within 10-15 seconds जो पैराशूट है वो भी खुल गया है। बहुत के बाद गजब का दृश्य है, बहुत गजब। आंखें झपकाई भी नहीं जाती, मैं कहती हूँ कि आंखें झपकाने का भी दिल नहीं करता। Yes, absolutely. Well, it is a simple act, unlike other flying adventure activities, but the skydiving is one of an experience of its kind. इनका demonstration। तो गाइस ये है मेरे पीछे फूड कोर्ट एरिया। तो अब इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और फूड कोर्ट एरिया में मैं अभी बैठा हूँ, देखिए जसमीत के साथ, वर्ल्ड ऑफ जसमीत इनका यूट्यूब चैनल है और बहुत ही मज़ेदार वीडियोस बनाते हैं दिल्ली एनसीआर की। तो सडन इनसे मिलना हो गया, आज मज़ा आ गया मिलके, बहुत ही प्लीजेंट और फ्रेंडली नेचर है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो भाई तो यहाँ पे हमारे ब्रेड पकौड़ा चल रहा है चाय के साथ।